Good evening, everyone. Welcome to In Touch, a masterclass on school products powered by Brain Wonders in partnership with Let's Write. This fourth edition of Masterclass series will take you on a short journey of introducing you to 30 innovative school products selected from across India. In this masterclass, innovative products, informative content, and progressive ideas are being shared with you. We remain hopeful that this and forthcoming sessions will inspire you to take your school community to a new direction of development. My name is Namrata and I will be your moderator for today. I represent India's largest counseling organization, Brain Wonders. With 12,000 school connects and 108 global centers, Brain Wonders has been revolutionizing the face of academic guidance, career development, and personal growth via its US patented DMIT and online psychometric tests. Founded by Mr. Manish Naidu, over the past decade, Brain Wonders has been nationally awarded on 7 different platforms, including recognition for being the most trusted and digitally innovative career counseling company. Excellence and passion is what Brain Wonders strives for, and with that, let's begin today's session. Before I welcome today's speaker, I request all our audience to immerse themselves in the session and hold their questions, which will be addressed right after the session. I present to you today's speaker, Pankaj Garg, who's the founder of Let's Write. Pankaj Garg is started his teaching career 26 years ago in 1994 as a math teacher in a state board school. After 8 years of teaching experience, he left his job and started a and start sorry he left his job and started a pre-primary school in Sri Ganganagar, Rajasthan. Within 2 years, he converted pre-primary school into a primary school up till 8. He never thought of starting 9 to 12 standards because he felt that there are so many things which could be changed and should be changed within the pre primary schooling pattern itself. During this process, he found out some problems in handwriting patterns in schools and where handwriting students deteriorates. Bad handwriting impacts the students' academic performance in board and university exams as well, and hence, after deep analysis and research, he found out some concepts which could help the students to keep the handwriting better forever. With that, he founded Let's Write, a new age innovative book. These unique notebooks have been specially designed and patented under the provisions of the Design Act 2000 and have been proven to improve handwriting in English, Hindi, and maths. Today's session topic is importance of handwriting and how it can be kept better. Over to you, Mr. Garg. Thank you, Namrata ji. So, and all the viewers, as you told, जैसा आपने बताया कि लेट्स राइट में हमने बच्चों की हैंडराइटिंग जो खराब हो जाती है एक पर्टिकुलर एज के बाद और जिसकी वजह से उन्हें बोर्ड एग्जाम्स में अपने मार्क्स कम स्कोर हो जाते हैं उनके। जितने वो बच्चे सोचते हैं बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद कि मेरे मार्क्स इतने परसेंट आएंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से सब कुछ सही लिखने के बाद भी उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हमने इसमें कुछ स्टडी की लेट्स राइट में कि बच्चों की हैंडराइटिंग किस वजह से खराब हो जाती है, जबकि बच्चे का भी कसूर नहीं है, उसके टीचर्स का भी कसूर नहीं है और कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से उसकी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो लेट्स राइट एक वे है जहां आपकी जैसी भी हैंडराइटिंग है उसको हम काफी हद तक इम्प्रूव करवा देंगे। तो इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या है हैंडराइटिंग के, तो लेट्स राइट के थ्रू या जैसे भी आप हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करेंगे उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आती है, क्रिएटिव थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो लिखते समय हम साथ साथ सोचते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों आपकी आगे चलती रहती है साथ साथ। जितने भी ऑथर्स हैं वो सभी लिखने के साथ साथ ही उनके माइंड में कुछ ना कुछ नया भी चलता रहता है। प्रमोट्स क्लियर थॉट्स एंड नेचुरल स्ट्रक्चर। हैंडराइटिंग इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड हैंड। हैंडराइटिंग इम्प्रूव्स लर्निंग एबिलिटी और हैंडराइटिंग के कारण से आपके बच्चे की लर्निंग की एबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जब वो बच्चा सीखना शुरू करता है
लर्न करता है कुछ भी, जैसी उसकी हैंडराइटिंग होती है उसके बाद उसको खुद को रीड करना आसान हो जाता है। जब वो चीजें आसान हो जाती हैं तो उसको लिखना भी आसान हो जाए, उसको याद करना आसान हो जाता है। याद करना आसान है तो उसके मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। और बैड हैंडराइटिंग के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी डाउन चली जाती है, उसकी वजह से पर्सनैलिटी में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अगर आपको मिले और बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी हो तब वो सब चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो है बच्चे का, वो भी हैंडराइटिंग अगर अच्छी हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। हैंडराइटिंग के बारे में हमारी सोसाइटी में कुछ परसेप्शंस हैं कि हैंडराइटिंग सिर्फ बचपन में ही अच्छी हो सकती है, जबकि हमने जो लेफ्ट साइड में कॉन्सेप्ट डेवलप किया है उसमें आप किसी भी एज में अपनी हैंडराइटिंग सुधरवा सकते हैं। हमने जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स थे, बीकॉम के, एमकॉम के, ग्रेजुएशन के, उनको भी हैंडराइटिंग उस एज में आके इम्प्रूव करवाई है। और स्पीड जैसे जैसे बच्चे की बढ़ती है हैंडराइटिंग लिखने के दौरान, तो उसकी राइटिंग भी पुअर होनी शुरू हो जाती है। और ये एक माना जाता है, लेकिन स्पीड के साथ साथ भी हैंडराइटिंग अच्छी की जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार हम गाड़ी वगैरह कुछ फास्ट चलाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा एक्सीडेंट करते हुए चलेंगे। तो उसी तरह से हैंडराइटिंग है, स्पीड के साथ भी आप उसको अच्छा रख सकते हैं। हैंडराइटिंग इज रिक्वायर्ड ओनली इन स्कूल, ये भी एक जनरल परसेप्शन है सोसाइटी में हम सबका, लेकिन ऐसा नहीं है। हैंडराइटिंग हर जगह आपकी इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप एक चेक फिल करते हैं और उसमें भी अगर आपने अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है तो उसमें मिस्टेक्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कहीं भी कुछ मिस्टेक हो जाती है अगर एक सिंपल से चेक में भी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेट्स राइट एक अलग तरह की नोटबुक्स आपको ऑफर करता है, जिसमें जो भी आपकी हैंडराइटिंग है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, और स्पीड के साथ साथ अच्छी हैंडराइटिंग बनाए रख सकते हैं। और हमने इसमें इंग्लिश के लिए नोटबुक बनाई है, मैथ्स के लिए नोटबुक बनाई है, और हिंदी के लिए। मैथ्स की जो नोटबुक है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है प्री प्राइमरी क्लास में, जब एक बच्चा लिखना शुरू करता है, जैसे आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं कि 1 2 3 4, ये वो बेसिक नंबर्स हैं जो एक बच्चे को प्री प्राइमरी या नर्सरी क्लास में लिखवाने हम शुरू करते हैं। और इन तीनों तरह की शेप्स के साथ भी जिस तरह से हमने नंबर्स लिख के दिए हैं, अगर लिखे होते हैं बच्चे के द्वारा तो टीचर उसको ऑलमोस्ट सही कर देता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उसके लॉन्ग लाइफ में पड़ता है कि वो बच्चा सारी उम्र ही कुछ ना कुछ नंबर्स को गलत लिखता रहता है, और लेटर ऑन उस पे चीजें सुधर ही नहीं पाती। अब यहाँ हमने आप देखे इसमें कि इस कॉन्सेप्ट को 3 लाइन नोटबुक में डेवलप किया है। 3 लाइन नोटबुक में डेवलप करने का जो हमारा पर्पज है कि उसमें बच्चे को रेड टू रेड ये मार्क से आइडिया लग जाता है कि यहाँ उसको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। 2 की शेप, 3 की शेप में बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चा 3 साल का जो होता है नर्सरी क्लास में, वो ये जजमेंट नहीं कर पाता कि इस 3 में सेंटर पॉइंट कहाँ होगा जहां से वो पेंसिल को दोबारा टर्न करना शुरू करे। सिमिलरली यही प्रॉब्लम 4 में आती है, 5 में आती है, 6 में आती है, 7 में ये प्रॉब्लम इस तरह से नहीं आती, लेकिन वहाँ एक अलग रीजन है उस प्रॉब्लम का। और 8 में भी ये प्रॉब्लम आती है। 8 तो आज भी बहुत सारे लोग उस वे से नहीं लिख पाते जिस तरह से हमें लिखना चाहिए। 9 में प्रॉब्लम है। 10 के अंदर 0 का साइज ऑलमोस्ट हम बाकी 1 to 9 के अकॉर्डिंग छोटा लिखते हैं, जबकि जहां कहीं भी प्रिंटेड मटेरियल आता है 10 में 0 का साइज बाकी न्यूमेरिक वैल्यूज के इक्वल ही लिखा जाता है। और इसमें आप पीछे वाली स्लाइड्स में आप दोबारा देखें कि 2 3 4 इन सब में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ इस समस्या को हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैथ्स में है, जो हमने इसको इनोवेट करके इसको रेगुलेट किया है। एक्यूरेट शेप्स आएंगी प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, और बच्चा सारी उम्र के लिए अपनी हैंडराइटिंग मैथ्स में न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रॉपरली लिखेगा, कहीं भी लिखना होगा। अब हम इंग्लिश में आते हैं।
इंग्लिश में हम सब ने जिस तरह से अपने बचपन में लिखने की शुरुआत की, वो 4 लाइन नोटबुक में शुरुआत की। 4 लाइन नोटबुक में जब हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर क्लासेस तक स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, 4th या 5th तक हम लोग इसी 4 लाइन नोटबुक में स्कूल लिखवाते रहते हैं, उसके हैंड राइटिंग जो भी इंग्लिश का राइटिंग मटेरियल है। उसके बाद उसको 5th क्लास में या 6th क्लास में बच्चे को सिंगल लाइन नोटबुक पे शिफ्ट किया जाता है। जब बच्चे को सिंगल लाइन नोटबुक पे शिफ्ट किया जाता है, तो वहां उस बच्चे को 2 काम एक साथ करने पड़ते हैं। 2 काम एक साथ में कौन कौन से 2 काम हैं कि एक तो उसको साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। जो भी वर्ड्स का साइज वो अब तक लिख रहा था, उसके साइज को उसको रिड्यूस करना पड़ता है। सेकेंडरी, अब उसके पास स्पेसिंग नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मेरे को कौन सा लेटर जो है वो किस साइज में लिखना है। अब जब उसको इस साइज का नॉलेज नहीं होता कि मेरे को किस साइज में कहाँ लिखना है, तो कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जहां वो मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी हैंडराइटिंग वहां से उस शेप में नहीं रहती जब तक वो 4 लाइन नोटबुक में लिख रहा था। तो इसकी वजह से वहां वो लिख ही नहीं पाता। और कुछ हमारे क्लासेस में जब टीचर 5th क्लास में या 6th क्लास में डिक्टेट करते हैं, तो वहां टाइम का प्रेशर पड़ता है उस पे। वो फटाफट सुनता है, या टीचर क्लास में बोर्ड पे फटाफट क्वेश्चन आंसर लिखता है, वो वहां से उसको फटाफट कॉपी करता है। हैंड राइटिंग की वो ज्यादा परवाह उस टाइम नहीं कर पाता। अब एक बच्चे से जो अभी 10 साल का मुश्किल से होता है, उससे आप मल्टीपल वर्क की ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और वहां वो टीचर उसको इग्नोर करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितना हैंड राइटिंग पे छोटी क्लासेस के टीचर मेहनत करते हैं, जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाती है, वहां वो टीचर का ध्यान उन सब चीजों से घटना शुरू हो जाता है। इसके कारण से उसकी हैंड राइटिंग में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेटर ऑन बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। वहां कम हो जाने का कारण है कि शुरू के 2-3 पेजेस पे तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में हर बच्चा वर्क करता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि टाइम का प्रेशर अब ज्यादा हो गया है और क्वेश्चन मेरे को काफी करने वाले पड़े हैं। फिर वो स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ भी उसको लगता है कि अभी मेरा काम काफी रहता है, और लास्ट के 3-4 पेजेस जो बोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आंसर शीट में होते हैं, वहां उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। और उस वीकनेस के कारण से उसके मार्क्स वहां पे कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो आंसर शीट चेक कर रहा है उसकी, उसको भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं चेकिंग के लिए, क्योंकि उसको अपना स्कूल या कॉलेज वर्क भी करना है और उसके बाद आंसर शीट्स भी चेक करनी है। तो इतना टाइम उसके पास नहीं होता कि वो एक एक चीज को बड़े अच्छे से पढ़ ले, और पढ़ने लायक लिखाई नहीं रहती। बहुत सारी सिचुएशंस में तो बच्चे से जब हम कह देते हैं कि बेटा इसको पढ़ के दिखा दो, क्लास में भी जब स्कूल में बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम देता है या इंटरनल एग्जाम्स देता है, इसको पढ़ के दिखा दो तो हम आपको मार्क्स दे दे, तो बच्चा खुद अपनी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाता। इस समस्या का हमने यहाँ सोल्यूशन किया है, और इसी वजह से उसके लास्ट के जो 3-4 पेजेस हैं, वहां उसके मार्क्स में कुछ कमी आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ साइज में जो फर्क पड़ जाता है, टेक्स्ट साइज जो बच्चा इस नोटबुक से इस नोटबुक में आता है, वहां उसका साइज 40% के आसपास डाउन चला जाता है। और वो डाउन चले जाने के कारण ही उसकी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और स्पीड के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को आप एक देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्सरी टू सेकंड क्लास तक जो फर्स्ट हमारा कॉलम है, उसमें हमने जिस तरह से हैंडराइटिंग यहाँ शो की है आपको, इसी तरह से बच्चे लिखते हैं। उसके बाद हमने इनके गैप को, जो लाइनिंग है सेकंड बीच वाली स्लाइड में भी वही 4 लाइन नोटबुक है, लेकिन यहाँ पे उनका मार्जिन इतना हमने कम कर दिया कि जो यहाँ पे वर्ड्स का साइज आएगा वो सिंगल लाइन नोटबुक वाली साइज में आएगा। तो ये नोटबुक आप चाहें तो सेकंड थर्ड क्लास से यूज करके 6th 7th 8th क्लास तक जहां भी आप यूज करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। और इससे उसकी हैंडराइटिंग जब वो 4-5 साल इस पे लिख लेगा, तो उसके बाद उसको सिंगल लाइन नोटबुक पे जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जब भी हम अपनी नोटबुक कहीं भी लगवाते हैं, तो हम स्कूल्स को और को सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं, टीचर्स को, कि आप कुछ मटेरियल इसमें ऐसा भी दें कि जो वो स्पीड से लिखे। स्पीड से लिखेगा तो और उसकी हैंडराइटिंग भी नहीं बिगड़ेगी। तो प्रेशर के साथ थोड़ा सा काम करना हमें बच्चों को यहाँ सिखाना पड़ता है कि आपको जैसे टाइपिंग
इंस्टीट्यूट वाले टेस्ट लेते हैं कि आपको स्पीड से भी टाइप करनी है और मिस्टेक्स भी नहीं आनी चाहिए। तो वो चीज हम यहाँ भी उन बच्चों से प्रैक्टिस में लेते हैं। जब इस चीज को वो रेगुलर प्रैक्टिस में लाता है तो उसको स्पीड में से सही सही लिखना आ जाता है। स्पीड में सही सही जब लिखना आ गया तो उसको सिंगल लाइन नोटबुक पे जब लिखना है तो फिर ये उसकी प्रॉब्लम नहीं रहती। और इस प्रॉब्लम के नहीं रहने पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 8-9 साल पहले टीजीटी मैथ्स के तौर पे जब मैंने पढ़ाया है तो वहां मैंने देखा है कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि टीचर समझ ही नहीं पाता। क्योंकि मैथ्स के साथ साथ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट भी पढ़ाया। जिस टाइम मैंने पढ़ाया करता था उस टाइम मैथ्स टीचर ही हमारे स्टेट में फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाता था। बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं और यहाँ इस प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व आउट कर दिया है कि इस नोटबुक में 4-5 ईयर्स लिखने के बाद उस बच्चे की हैंडराइटिंग परमानेंटली ऐसी हो जाएगी कि अब चाहे वो सिंगल लाइन पे लिखे चाहे वो प्लेन पेपर पे लिखे, उसकी हैंडराइटिंग में वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो उसके बाद उसके बोर्ड एग्जाम्स यूनिवर्सिटी में वो प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। और यहाँ हम एक चीज जो जानते हैं कि बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो 2-4-5% नंबर कम हो गए उसके कारण से उसकी कितने मार्क्स कम हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वहां वो बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाता है कि जब उसके मार्क्स किसी वजह से कुछ ग्रेड कम हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया या कहीं ना कहीं वो उसको उस कमी को महसूस होता है, लेकिन कमी कहाँ रही है वो हम जान ही नहीं पाते। जो हमने रिसर्च की अपनी, उसमें हमने एक कमी महसूस की कि इस कमी का बेसिक रीजन क्या है कि वहां उसको डबल शिफ्ट करवा दिया गया। तो इस कमी को हमने यहाँ इंग्लिश में इस तरह से सॉर्ट आउट किया है। इसी तरह से यहाँ हम हिंदी की प्रॉब्लम्स में देखते हैं। हिंदी में बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह की नोटबुक्स यूज की जाती हैं। इसको नॉर्मली डबल लाइन नोटबुक बोला जाता है। यहाँ भी हिंदी में वही प्रॉब्लम्स आती है। हिंदी के अल्फाबेट्स हैं लगभग 49 अल्फाबेट्स में से 45 ऐसे हैं जहाँ पे एक सेंटर पोजीशन की जरूरत होती है कि उस सेंटर पोजीशन के कारण से बच्चा इन अल्फाबेट्स को प्रॉपरली लिख पाता है। तो हमने प्री प्राइमरी क्लासेस में भी नर्सरी के लिए, एलकेजी के लिए हिंदी, यूकेजी के लिए हिंदी में ये नोटबुक यूज करवाई है जो 5 लाइन नोटबुक है। इसमें बीच के 3 ब्लू लाइंस में बच्चा लिख लेता है अल्फाबेट्स को और ऊपर और नीचे की जो लाइन है वो उसकी मात्राओं के लिए काम आ जाती है। तो इससे उस बच्चे को शेप बनानी किसी भी अल्फाबेट्स की बहुत आसान हो जाती है। जब ये काम बहुत आसान हो गया तो इसके बाद सेकंड क्लास तक आप इस नोटबुक को यूज करवा सकते हैं। इसके बाद सिंगल लाइन या डबल लाइन में जो हायर क्लासेस में प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को वो ये आप देख सकते हैं कि मात्राओं के साथ यहाँ ये प्रॉब्लम्स आती है बच्चे को, और लाइन में लिखने के कारण से यहाँ ये प्रॉब्लम्स उसकी सॉर्ट आउट होगी। इसी तरह से हमने एलकेजी टू सेकंड तक 5 लाइन नॉर्मल गैप के साथ जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसका गैप लाइन टू लाइन जो इंग्लिश की नोटबुक है 4 लाइन उसके बराबर है। लेकिन यहाँ भी हमने यही काम किया कि हिंदी में भी सेकंड क्लास से लेके 6-7 क्लास तक बीच के लाइनिंग का स्पेस कम कर दिया। उस स्पेस कम करने की वजह से आगे जब सिंगल लाइन में बच्चा शिफ्ट होता है तो फिर उसकी वही प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। ये लेट्स राइट का हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पेटेंट वगैरह भी करवा रखा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स नोटबुक्स हम इस तरह से इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। Thank you so much, sir, for sharing with us your unique concept. आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे आज इस सेशन में आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। वी हैव अ लॉट ऑफ फीडबैक आल्सो, टेक आपका एनालिसिस एंड योर वर्क के बारे में। इट इज डेफिनेटली समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस एंड थरो। So, dear audience, we would like to take on board the questions right now. Whatever your questions are, you can put it in the chat box. You can use the activities button, and of course, you can also raise your hand and present your questions. So अभी chat box and activities section या फिर raise hand करके we will be expecting questions very soon. Okay, sir. So we have first question for you. Dr. Yogita Sarwal is asking,
That what about the regional languages? मैडम जो देवनागरी बेस्ड रीजनल लैंग्वेजेज हैं वो सभी इसमें लिखी जा सकती हैं, जैसे गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है। जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है, जो द्रविड़ लैंग्वेज है, उनको लिखने का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नहीं सेट कर पाए हैं, पर बाकी जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं वो सभी इसमें लिखी जा सकी। वो सबका हमने ट्राई कर लिया है, पर वो यहाँ से भी लैंग्वेज दिखाने कोई लगा नहीं हमें कुछ लॉजिकल, तो इसलिए हमने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया उसको। जी सर, एक्चुअली हमारे पास काफी सारे ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं आज, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। सो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। सो यस, देवनागरी बेस्ड और द एनी लैंग्वेजेस दैट हैज बीन बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो एक देवनागरी लिपि के ऊपर आधारित जितनी भी भाषाएं हैं उसका इस पे हम लिखित रूप में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो करेक्ट? हिंदी तरह से लिखी जाती हैं, देवनागरी का मतलब जो हिंदी संस्कृत है वो सारी की सारी इसमें कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं। और ओके बाकी उर्दू का हमें नहीं पता इसमें कैसा लिखा जाएगा, उस पर जी, हमारा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। thank you, sir. So yes, so I think a One more thing which I wanted lot to of share. languages can be taken care of accordingly. They want to know, sir, इसको order करने के लिए कोई online process, any web link that can be used to order है this? मैडम, वेब लिंक नहीं है, को प्रोवाइड करवा देंगे इसमें। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप एक नंबर मैं आपको बोल के बता देता हूँ, 83799 जी 83799 08091 जी ओके। ऑडियंस मैंने 08091। ये हम लोगों ने चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर दिया है। द नंबर गोज लाइक 837999089091। यहाँ पे हम लोग टेलीफोनिक ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट सर? और इसको मेरा बेटा हैंडल करता है, मतलब ओके, तो सो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं एंड आपके पास वो ऑर्डर किसी भी प्रोसेस तरह करने की में वो कोई हेल्प किसी कर की भी देंगे। क्वेरीज हो कुछ इस नंबर इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो बेटा अच्छे से उनको डील करके इसके बारे में उनके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। ठीक है और सर, थैंक इसके यू। अलावा एक चीज के बारे में मैंने और बोलना था जी कि सर। बेसिकली जो हम लोग प्राइमरी एजुकेशन है, कि आपने जैसे मैंने आपसे शुरू में आपने बताया कि स्कूल को एक मिडिल क्लास तक लाने के, 8th क्लास तक लाने के बाद, कि मैं क्यों नहीं इसको कभी ऊपर की क्लासेस तक ले गया। तो मैं कुछ समय उसके ऊपर भी बोलना चाहूंगा जी कि सर। प्रॉब्लम कहाँ रहती है हमारे सिस्टम में। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि ज्यादातर छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल आके ही खुश नहीं होते। इस तरह से कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जिसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, तो इफ यू परमिट मी। जी सर, ऑफ कोर्स द होल स्टेज इज योर्स, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। तो मतलब मैंने जो आज तक महसूस किया कि सबसे पहले कि हम बच्चों को स्कूल भेजते क्यों हैं। स्कूल भेजा जाता है उसको सीखने के लिए, कि सीखना कैसे है। लेकिन ज्यादातर हमारे स्कूल्स में जो प्रॉब्लम है, हम यही नहीं कभी उसको सिखाते कि सीखे कैसे, बल्कि उसको क्या करवाया जाता है, टीचर क्लास में आता है हमारा, कुछ क्वेश्चन आंसर लेसन को एक्सप्लेन करता है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर उसने करवा दिए, क्वेश्चन आंसर उनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर एग्जाम में दे दिए, एग्जाम में दे देने के बाद बच्चा उन क्वेश्चंस के आंसर दे देता है, आंसर दे देने के बाद उन आंसर के बेस पे पेरेंट्स भी, बच्चा भी, टीचर भी सब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भी बच्चे की प्रोग्रेस ये अच्छी है, ये मार्क्स आ गए, और इसके बाद सब खुश हैं इससे। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि इसमें बच्चे ने सीखा क्या। हम यहाँ बच्चे जो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं वो रिटर्न बेस्ड एग्जाम है, जबकि हम भारतीयों को रिटर्न बेस्ड एग्जाम देने की परंपरा नहीं रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो लगभग ओरल बेस्ड था। बच्चे से मौके पे कोई क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता लगता है। साथ साथ रिटर्न में तो आपको एक क्वेश्चन जो आपके पास आ गया वो आप आधा घंटा सोच के भी आंसर दे सकते हैं, जबकि ओरल एग्जाम्स में इस तरह से नहीं होता और आपको अपना जो नॉलेज है वो तुरंत रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो इस प्रोसेस में हमें जो समस्या लगती है, जब टीचर ने क्लास में लेसन पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर करवा दिए, बच्चा लेसन को तो कभी ढंग से पढ़ता ही नहीं है,
क्योंकि उसको पता है कि मेरे से लेसन के अंदर से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। अगर पूछे भी जाएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम है तो मुश्किल से 10 मार्क्स के उसमें से, बाकी 90 मार्क्स तो उन्हीं क्वेश्चन, उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो उसकी नोटबुक में करवाए जा चुके हैं। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि वो सीखता ही नहीं है, वो रट्टा मारता है। और रट्टा मारता है तो वो जब नॉलेज जो उसको रट्टे के कारण से मिली है, वो आगे जिंदगी में काम नहीं ले पाते। तो जो उस प्रोसेस में वहां जो सिखाया जाएगा, क्लास में ज्यादा से ज्यादा ओरल हो। मैंने जो ये मानना मानना सोचा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा हम क्लास में उसको ओरल वर्क पे डिपेंड करें, ताकि उसको मौके पे कुछ करवाएं। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ये लॉकडाउन पीरियड में हमने सबने एक चीज महसूस की है कि बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन स्टडी करना सीख रहे हैं। तो इस चीज को हम आगे अपने सिस्टम में भी ला सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने सॉफ्टवेयर दे रही हैं, जो स्कूल्स में आके बता रहे हैं जैसे, और वहां पे उस बच्चे वो चीजें टीचर करवा रहे हैं, लेकिन वो टीचर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था और बच्चा भी इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पे हम उसको बाउंड कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ आईबी पैटर्न के स्कूल्स देखे हैं, आईबी पैटर्न के स्कूल्स में उसी तरह से हम भी यहाँ करवा सकते हैं कि एक क्लास में एक वीडियो कंटेंट आपने एक लेसन के बेस पे बच्चों को दिखाया, और 4-6 बच्चों की टीम बना दी आपने, उसमें 4 से 6 बच्चों की टीम बनाने के बाद फिर वहां उन बच्चों से टीचर लाइव क्वेश्चन पूछे कुछ, या बच्चे आपस में कुछ क्वेश्चन पूछे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एक टीम ने क्वेश्चन पूछा, दूसरी टीम आंसर दे रही है, दूसरी टीम ने क्वेश्चन पूछा, तीसरी टीम आंसर दे रही है। अब बच्चे को बार बार उस लेसन के कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। टीचर उस वीडियो को वो देखेगा जो टीचर ने उनको दिखाया है, जितना वो देखेगा उतना जानेगा, जानेगा तो वो समझेगा, और समझेगा तो आंसर भी देगा, और ये नॉलेज उसके साथ फर्म रहेगी। जो आज हम सब के साथ भी ऐसी चीजें हैं। आपने मैंने बचपन में कभी साइकिल चलाई, आज उसके बाद लगभग इस एज में आके मेरे को नहीं याद आता कि मैंने पिछले 20 सालों में कभी साइकिल चलाई हो, या शौक के लिए कभी साइकिल चलाई हो, तो बात एक अलग है। लेकिन आज भी अगर मेरे को चलानी पड़ेगी तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी। तो वो नॉलेज वो तुरंत इंप्लीमेंट कर सके जहां भी उसको अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं करवा पाते हम उस नॉलेज को, क्योंकि बच्चे से कभी उस नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो जब क्वेश्चन ही नहीं कभी आपने पूछा, तो जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, तो वो क्यों सीखेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसको टीचर बनाएं। जितने भी हमारी स्टडीज हैं उसमें जब कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछा गया तो उसको एक टीचर की तरह से समझाना पड़े। जब वो टीचर की तरह समझाने लगेगा तो वो पूरा लर्नर बन जाएगा उससे पहले, और लर्नर बन गया तो वो जिंदगी में जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, वो उस समस्या के हल तक पहुंचेगा। जैसे मैंने भी जब ये स्कूल शुरू किया तो सबसे पहले प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की, वहीं ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई कि ये छोटे बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी क्यों नहीं रह पाती। मैथ्स में तो खास तौर से, क्योंकि मैथ्स की नोटबुक बॉक्स में चलती है। वहां उस प्रॉब्लम को चेक किया तो देखा कि हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। तब इस पे थोड़ी सी मैंने अपने टीचर के साथ बैठ के आर एन डी की। आर एन डी करने के बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स में अलग अलग लाए। वहां हमें ये क्लियर हुआ कि यहाँ अगर हम इसको इस तरह से करवाएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें से ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं पता कि जब अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो कंसल्ट किससे करें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। जब हम यही नहीं सोच पाते कि कंसल्टेशन किससे ले, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें स्कूल सेलेक्ट करने की। हर आदमी जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो उसको ये नहीं पता कि स्कूल किस बेस पे देखा जाए। तो वो जब स्कूल ही एक छोटी सी बात है कि देखना चाहिए कि जिस बेस पे वो नॉर्मली बिल्डिंग पे देख लेते हैं या कुछ और चीजों पे देख लेते हैं, फैसिलिटी पे देख लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे को जो चीज मिलनी है वो किसके थ्रू मिलनी है? टीचर्स के थ्रू। टीचर खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उसी ने अगर वो टीचर अच्छा होगा उस स्कूल में तो वो बच्चे को सिखा लेगा। आज आप और हम इंसान जितने भी हैं, मेल फीमेल के कुछ एक डिफरेंसेस हैं सब में, लेकिन इसके अलावा सभी का माइंड अलग अलग है। फिजिकल पार्ट तो सबके एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो जो ब्रेन है दुनिया में किसी भी दो आदमियों को एक जैसा नहीं है। और वो दो आदमियों को एक जैसा नहीं है, लेकिन वो दो आदमी एक ढंग से सोचते भी नहीं, लेकिन वो सबकी नॉलेज का लेवल अलग अलग है। तो वहां पे हम उसको सोचना सिखाएं। और दूसरी चीज जो प्राइमरी एजुकेशन मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, उसका रीजन है कि एक बच्चा या
कोई भी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में लगभग 18 से 20 साल मिनिमम आज की डेट में उसको एजुकेशन लेनी पड़ती है, जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी के लग गए, उसके बाद +2 तक के 12 ईयर्स, फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के 4-5 ईयर्स लग गए, और इन 20 ईयर्स जो उसके लग जाते हैं लगभग, उसमें फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन क्या है? प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी क्लासेस। इसको अगर हम एक बिल्डिंग से कंपेयर करें, 18 से 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है हमारे पास, या हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होनी चाहिए, फाउंडेशन में या टॉप में? तो नेचुरल है, हम सब जानते हैं कि फाउंडेशन उस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगी, तभी वो बिल्डिंग आगे सस्टेन करेगी। अगर आपने नीचे ध्यान नहीं दिया तो ऊपर वाली बिल्डिंग आप कितनी भी अच्छी बना लो, वो नहीं स्टेबल करेगी, वो गिर जाएगी अल्टीमेटली। यही प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है कि ज्यादातर हमारे समाज में जो हम सोचते हैं कि प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लास में तो कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ लेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, बाद में अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक किसी के साथ कि वो बच्चा सुधर गया हो बाद में। तो इसी कॉन्सेप्ट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मार्शमेलो बेस पे एक स्टडी हुई कि वहां पे एक क्लास के 40 बच्चों पे के सामने उनकी मनपसंद चॉकलेट का रख दिया गया, और टीचर ने कहा कि मैं 10 मिनट ठहर के आता हूँ, तब तक कोई भी इसको खोलेगा भी नहीं और खाएगा भी नहीं। अब जब टीचर 10 मिनट बाद आया तो उसने देखा कि लगभग 25 बच्चों ने तो चॉकलेट खोल के खा ली, 5-7 बच्चों ने सिर्फ रैपर ही खोला था, और 7 बच्चों ने बिल्कुल उसको टच भी नहीं किया। अब जिन बच्चों को टच भी नहीं किया, उस टीचर ने लगातार उन बच्चों को ऑब्जर्व किया उनकी लाइफ में सेटल होने तक, और ये प्रोसीजर वो हमेशा कर रहा है। अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास नॉलेज में आई चीज, जो मैंने स्टोरी कहीं पढ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि बाद में उसने देखा कि वो जो 7 बच्चे थे जिन्होंने उस चॉकलेट को छुआ भी नहीं, वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से सक्सेस भी हैं, आज उनके पास अच्छी रेपुटेशन भी है और अच्छा इनकम ऑफ सोर्स भी है। तो मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन शुरू से चाहिए। आज हमारी सोसाइटी में, अभी तो छोटा है कोई बात नहीं, बच्चे के बारे में हम सब बातें कह के इग्नोर कर जाते हैं। कहीं बच्चा बदतमीजी से बोलता है तब भी हम परवाह नहीं करते, कहीं बच्चा स्टडी में काम अपना प्रॉपर करके नहीं आया, हम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन बाद में सोचते हैं कि बड़ा हो जाएगा सुधर जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है कि जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग है वही बिल्डिंग सुधरेगी, दूसरी नहीं सुधर सकती। और सेकेंडरी है कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चे खुश होकर क्यों नहीं आते हैं, ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब लॉकडाउन है, या इससे पहले भी दिवाली की, होली की, या इस तरह से साल भर में छुट्टियां स्कूलों में जब भी आती हैं, जब भी बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल आते हैं तो एक बार डिस्टर्ब ही रहते हैं। कुछ दिन तक तो वो पूरी क्लास लगती ही नहीं कि ये स्कूल में पूरी क्लास आई है। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, खास तौर से प्राइमरी क्लासेस तक। उसके बाद तो बच्चे को पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वर्कलोड मेरे पे बढ़ेगा, लेकिन प्राइमरी क्लासेस तक ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि वो बच्चे स्कूल आने के लिए खुश नहीं होते, तैयार नहीं होते। अब इसमें जो मैंने जो एक चीज महसूस की और उसके अकॉर्डिंग अब हम अपने स्कूल में वर्कआउट कर रहे हैं कि लगभग सभी स्कूल्स में प्राइमरी क्लासेस में या सेकेंडरी तक भी 8 पीरियड्स डेली लगते हैं। प्राइमरी क्लासेस में 4 पीरियड्स जो उनके मेन सब्जेक्ट में जो हमारे इस एरिया में लगते हैं नॉर्थ इंडिया में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, 4 पीरियड इनके हो गए। अब इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज हम लोग प्रेयर में करवा लेते हैं, जिसमें न्यूज रीडिंग होगी, डॉजिंग टेबल्स हो गए, डिक्टेशंस होगी, कुछ जोक वगैरह हो गया, कुछ और इस तरह की एक्टिविटी होगी कभी कभी। लेकिन 4 पीरियड हमने अपने स्कूल में यहाँ इस तरह से रखे हुए हैं कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट बने, उन 4 पीरियड्स के लिए वो स्कूल आने को तैयार हो। जिसमें फर्स्ट पीरियड एक हमने अलग से रखा हुआ है, जिसमें रेगुलरली कभी हम मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, कोई ना कोई उसको गेम्स सिखा रहे हैं, डांस है, सिंगिंग है, जो बच्चा करना चाहता है उसका इंटरेस्ट बनता है। एक पीरियड आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर क्लास का है, जिसमें एक हमने ये भी कॉन्सेप्ट रखा हुआ है टीचिंग का,
कि थोड़ा थोड़ा बच्चे जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, महीने में एक बार जिस जिस लेसन को टीचर ने क्लास में करवाया है और जिस जिस टॉपिक पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वहां बच्चों से पूछ लेते हैं पहले से कि बेटा इसको कौन एक्सप्लेन करेगा आगे क्लास में। वो उस बच्चे को एक्सप्लेन करता है जिसकी प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ वो टीचर भी बन गया और वो लर्नर भी बन गया। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग आज की डेट में पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा कल्चर में है, क्योंकि जिंदगी में जो भी आज हम कुछ कर रहे हैं उसमें मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा अच्छी स्टोरी है। आज हम टीवी पे देखते हैं जब किसी पॉलिटिशियन को, किसी साधु महात्मा को, जो सबसे कम पैसा खर्च करते हैं और सबसे ज्यादा अर्निंग करते हैं। बाकी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे रहा है तब उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन ये लोगों को कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, और पैसा भी सब लोग लगाते हैं और बड़ी खुशी से लगाते हैं। तो और ज्यादातर अच्छी अच्छी ढंग से अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और बिजनेस में भी यही है, बहुत सारी शॉप्स मार्केट में ऐसी हैं कि जो सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं, लेकिन हम जाते पर्टिकुलर उसी शॉप पे हैं उसी प्रोडक्ट के लिए जो अच्छे ढंग से बातचीत करता है। बातचीत कौन करेगा? जिसको स्टोरी टेलिंग की कला आ गई। यहाँ उसको एक साथ में चीजें हम और भी करवा सकते हैं कुछ, जैसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। अब इसके अलावा एक पीरियड स्मार्ट क्लास में जहां हम जनरल वीडियोस दिखाते हैं, सब्जेक्ट के अलावा के जो जनरल वीडियोज हैं वो उनको दिखाए। जैसे किसी गेम्स का दिखाया, कोई गेम चल रहा है तो वहां उस पर्टिकुलर प्लेयर को ये इस तरह से क्यों टारगेट किया जाता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बताओ आप। जैसे चाय बनाने का प्रोसेस भी हम छोटे बच्चों को ही सिखाना शुरू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए पॉट, पुट सम वाटर इन इट, एड बॉयल इट, add some tea leaves, then sugar, then milk, then filter it। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हम उसको स्टेप बाय स्टेप करना सिखाते हैं। तो उससे उस प्रोसेस को बच्चा करना सीख जाता है कि एक सिस्टम से काम होगा सारा। आप एकदम से बच्चे को किसी भी लेवल पे नहीं ले जा सकते। आज हम बच्चे को ग्रेजुएशन तक की स्टडी करवा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन एक सिस्टम से कर रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10th 11th 12th, देन ही गोज टू कॉलेज। तो ये सब चीजें हम इस तरह से करवा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के आप उसको यूज पूछ सकते हैं। एक अलग से हमने पीरियड रखा है जहां कुछ चीजें को हम रिपीट कर लेते हैं, कुछ चीजों को हम डिफरेंट डिफरेंट यूज। सपोज कर लो आपको मौके पे कह दिया गया एकदम से सडन, टेल मी द यूजेज ऑफ शूज, तो बच्चा एकदम से सडन हो जाता है कि क्या बताऊं मैं। नॉर्मल एक चीज हम जानते हैं कि एज ए फुटवेयर वो यूज करते हैं, पर जब उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड को उसको कहेंगे आप, तो आप इसको हिट भी कर सकते हैं, आप इसे नॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें वो बताना जब शुरू करता है, आप इसमें शूज में प्लांट्स भी लगा सकते हैं, इसको एज ए ज्वेलरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब हम उसको करवानी शुरू करते हैं, तो यहाँ उसका माइंड एक्टिवेट होना शुरू होता है। और माइंड को ही तो डेवलप करने के लिए वो स्कूल में लाए जाते हैं। मेरे ख्याल से और कोई पर्पज नहीं है। आज आप और हम सभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी और डिग्री को लेके इस सीट पे हैं जो अपना आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि जितना भी आज तक हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक्स में स्कूल की, वो हमें याद है? मेरे ख्याल से कोई भी एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिलेगा हमें पूरी दुनिया में जो ये कह सके कि हाँ भी जो मेरे को याद है। लेकिन जिस काम को रेगुलर अपने हाथ से अपने प्रैक्टिस में लाए हैं, किया है, वो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूल सकता उसको। आज हमें लिखना आता है तो लिखने के लिए हम हमें पता है कि हाँ भी किसको कैसे कैसे यूज करना है। पढ़ना आता है तो हम पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज कुछ ऐसी हैं कि जो हमने पिछले कुछ सालों में नहीं बोली, जैसे मान लो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो हमने अपने घर परिवार के आसपास सीखी हैं, लेकिन कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं हम किसी और शहर में जाके रहना शुरू कर देते हैं, उन रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही वहां कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो उसमें बात कर रहा है, हम तुरंत समझ लेते हैं, क्योंकि वो उसको आपने जिया है, उस चीज को आपने अपने साथ जिंदगी में जिया है, तो इसलिए आपको उस चीज को करने में कहीं कोई समस्या नहीं आती। तो इस तरह से जितनी भी चीजें हैं यहाँ हम उन बच्चों को करवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की उनको विजिट करवाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे हम ले गए बच्चों को, रेलवे स्टेशन पे ले जाने के बाद वहां हमने उसकी पूरी वर्किंग
रेलवे स्टाफ की हेल्प से उसको समझाई। ट्रेन के अंदर हम ले गए बच्चों को, तो वहां वो ट्रेन के अंदर की सिस्टम को समझ रहा है। गार्ड रूम में ले गए, इंजन में ले गए, कुछ कुछ बच्चों को ले गए, कुछ आपने वीडियोज के थ्रू दिखा दिया। तो वो बच्चे को एक बड़ी उत्सुकता रहती है कि हाँ भाई यहाँ मेरे स्कूल में ये कुछ होता है, और हमें भी नहीं पता कि इसका जिंदगी में कभी उसके यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन इन सब चीजों को देखने से, उन सब चीजों के बारे में जो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो बहुत कुछ अलग हो जाएगी। आप बच्चे के सामने मिठाई बनवा के दिखाएं स्कूल में। कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जब हम कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ खिला देते हैं, तो वहां आप उसको वो करवाएं, तो मेरे ख्याल से वो बच्चा उस प्रोसेस को अच्छे से सीख लेगा। अभी लॉकडाउन में, जब फुल लॉकडाउन था अप्रैल के मंथ में, मेरे ख्याल शायद ही कोई ऐसा परिवार हमें कहीं मिलेगा जिसने यूट्यूब से कुछ ना कुछ बनाना नहीं सीखा। और बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनके फर्स्ट ट्राई में ही बहुत शानदार वो मतलब डिश बन गई जैसी उन्होंने सोची थी। तो कुछ ना कुछ कमियां रह गई उसमें, लेकिन उसके बाद दोबारा तीसरी बार चौथी बार ट्राई की, तो मेरे ख्याल से उस डिश को बनने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसी तरह से जब आप बच्चे को लेके जाएंगे, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में ले जा सकते हैं, आप किसी ग्राउंड में ले जा सकते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं स्टेडियम वगैरह में। क्योंकि स्टेडियम में जब हम बच्चे टीवी में देखते हैं तो सिर्फ ग्राउंड दिखता है, लेकिन इसके अलावा जो स्टेडियम में फैसिलिटीज हैं वो उस बच्चे को नहीं पता। इस तरह से छोटी छोटी चीजें, होटल में लेके गए किसी में, क्या उनका वर्किंग स्टाइल होता है, किस तरह से वो काम करते हैं, तो ये जो चीजें हैं, जितनी हम उनको प्राइमरी एजुकेशन तक दे सकते हैं उतनी मैं नहीं समझता कि उसके बाद दी जा सकती, क्योंकि उसके बाद तो सिलेबस का वर्कलोड इतना पड़ जाएगा, तो वो उन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाता है। लेकिन अब वहां पे भी वो चीजें रिपीट होती हैं, तो उसको पीछे वाला रिकॉल हो जाएगा कि नहीं ये चीज मैंने वहां देखी थी तो मैं दोबारा जाऊं। वो अपने पेरेंट्स के जाके भी वहां कहीं ना कहीं से अपने सोर्स से दिखा सकता है, और नहीं तो जब बच्चे स्कूल में डिमांड करेंगे तो स्कूल वाला भी जाके दिखा सकता है उनको। तो यहाँ मैंने जो एक चीज महसूस की कि बच्चे को इस तरह से आप डेवलप करो, तो वो स्कूल आने में इंटरेस्टेड होगा। जब वो इंटरेस्टेड होगा, उसको अच्छी जगह मिलेगी, तो वो सीखेगा भी, और सीखेगा तो बच्चा सीखेगा तो आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, और सबको नेचुरल है। इसी काम के लिए हम स्कूल भेजते हैं बच्चे को कि वो सीखे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हम सबको दिए हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हाउ यू सेड दैट व्हाई योर फोकस हैज बीन ऑन द अर्ली एजुकेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स काफी सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि उनको किस स्कूल में जाना है। इनफैक्ट वी एज अ करियर काउंसलिंग कंपनी एट ब्रेन वंडर्स, वी आल्सो गेट सो मेनी स्टूडेंट्स एंड सो मेनी पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 साल 2 साल या 3 साल के हैं, एंड दे कम टू आस्क अस व्हाट इज द राइट प्ले ग्रुप, उनके लिए कौन सा एजुकेशन मोड अच्छा है, उनके लिए कौन सी हॉबी क्लासेस अच्छी हैं, उनको किस तरीके के मॉन्टेसरी मॉडल में डालना चाहिए, या फिर प्ले स्कूल में डालना चाहिए, या फिर उनको किस किंडरगार्टन में एनरोल करना चाहिए, या किस स्कूल बोर्ड में डालना चाहिए, सीबीएसई आईसीएसई। एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज हम जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम और लर्निंग स्टाइल बच्चे को दे रहे हैं, जैसा आपने बोला, इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, राइट। इट इज उसका वेरी जो लाइफ इंपॉर्टेंट। स्किल्स होता है, ये सब चीजें भी उन्हीं सब चीजों से हम लोग सीखते हैं। So we actually have one more question, sir. Before I present that to you, I think आपका phone शायद laptop के काफी पास है, जिसकी वजह से there are some audio disturbances. So if you can keep it a little far, yeah, so we will be able to hear you even more clearly. ओके। So we have a question by Shalini Mehta, who is asking what are some common handwriting problems that children face? Usually बच्चों को किस तरीके की तकलीफें आती हैं handwriting में? हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम मैडम, जो लिखना शुरू करवाते हैं ना हम प्री प्राइमरी क्लासेस में, वहां प्री प्राइमरी क्लासेस के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बड़ा अच्छे से बच्चा लिखता है। लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास में जाता है, तो वहां उसको सेंटेंस मेकिंग शुरू हो जाती है, और टीचर्स धीरे धीरे थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे फोकस उनका कम हो जाता है जितना प्री प्राइमरी का टीचर करता है, और वो टाइम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से कुछ जो अक्षर हैं या अल्फाबेट्स हैं, उसकी शेप्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। जब टीचर बार बार टोकेगा नहीं बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी, और थर्ड क्लास से ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती हैं। सेकंड क्लास तक भी सिलेबस बहुत कम होता है, वर्कलोड कम होता है, वो बच्चा मैनेज कर लेता है। थर्ड क्लास में नॉर्मली जो टीचर्स की प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, कि वो लास्ट में निकलते निकलते बोर्ड पे 2-4 क्वेश्चन लिख जाते हैं, और बच्चों को कह देते बेटा फटाफट नोट कर लो। अब वो फटाफट नोट करने के चक्कर में वहां बिगड़ना शुरू होता है खेल।
और वो जैसे ही हैंडराइटिंग बिगड़नी शुरू हो जाती है, उसके बाद टीचर उस पे उतना ध्यान दे ही नहीं पाता, क्योंकि एक क्लास में लगभग 40 बच्चे हैं। हर एक स्कूल में 40 बच्चों के क्लास को जब टीचर को नोटबुक्स को चेक भी करना होता है, तो वहाँ वो टीचर उन नोटबुक्स को बहुत अच्छे से चेक कई बार नहीं कर पाता। कुछ की हैंडराइटिंग तो बिगड़नी शुरू हो ही जाती है, और कुछ अच्छे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम जब आ जाती है, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती है। वहीं उनका कैरियर वो शेप नहीं ले पाता, जहाँ जो लेना चाहिए, जो आप और हम सोच के रखते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में ये प्रॉब्लम हमने फेस की, इसीलिए हमने उन नोटबुक्स में जो लाइन की स्पेसिंग थी, उसको इतना कम किया, जो सिंगल लाइन नोटबुक जो ट्रेडिशनली हर बच्चा कॉलेज लेवल तक काम लेता है, वहाँ उस साइज के वर्ड्स लिखे वो। That is great, sir. Okay. So if there is any last question, we can take that right now. All right. I actually do have a question, sir. I think आपने जब ये स्टार्ट किया था, जैसे आपने बोला आपने छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, राइट? पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहा, आफ्टर यू स्टार्टेड द प्रोग्राम? मैडम, पेरेंट्स का फीडबैक शुरू में तो जैसे हम इंडियंस की नेचर है ना, कि हर नई चीज को इग्नोर करना, उसके बारे में ये कहना कि अच्छी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कभी कोई और नहीं कर रहा। तो एक बार तो रहा, लेकिन जब आप उनको रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो नेचुरल अच्छा है। हम इंडियंस के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कोई भी नई चीज मार्केट में आई है, मेरे को बचपन से अपने याद है, जब फैन थे घर में, फिर वो कूलर से आए, नहीं कूलर से हेल्थ खराब हो जाएगी, फिर एसी आए, एसी से प्रॉब्लम आ जाएगी, गाड़ी के अंदर एसी है, नहीं ये खराब करेगा। मतलब कोई भी ऐसी, मेरे को मोबाइल में भी सिंपल जब बेसिक फोन थे, उसके बाद टच स्क्रीन फोन आए, नहीं वही बढ़िया है। मेरे को एक ऐसी सिंगल चीज भी नहीं याद आती कि जिसको हमने इजीली एक्सेप्ट किया हो। तो नेचर है हम इंडियंस की, तो उसको ना आप चेंज कर सके, ना मैं चेंज कर सकता। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आई है, तो अब हमने इसको कोशिश की है, और धीरे धीरे जब आपको रिजल्ट दिखते हैं, तो बहुत मतलब प्राउड फील होता है। आज हम जो ये नोटबुक है हमारी, हम 2 साल से अब ये बिजनेस को कर रहे हैं एज ए मतलब मार्केट में, और लगभग 100+ स्कूल्स में ये नोटबुक्स यूज हो रही हैं। किसी में इंग्लिश की यूज हो रही है, किसी में तीनों यूज हो रही है, किसी में मैथ्स की यूज हो रही है। मैथ्स की हमारी नोटबुक जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रही है अभी तक। और जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं इवन कॉलेज लेवल तक के बच्चों के, कि हैंडराइटिंग इंग्लिश की पुअर, तो उस वजह से वो मतलब उसके मार्क्स गए। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आईएएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को एक प्रोफेसर जो हैं, मेरे मित्र हैं, वो लेके गए कि उस बच्चे के पास क्या भाई साहब, जब उसको मैंने अपना कॉन्सेप्ट दिखाया, तो कहते यार ये कारण हो सकता है कि उस बच्चे का एग्जाम्स में मार्क्स कुछ कम आए, कि जो हम मेरे भी दिमाग में नहीं आया। और जब वो मेरे को लेके गए, तो उस बच्चे की हैंडराइटिंग देखने के बाद मैं भी बड़ा हैरान हो गया कि इतने मतलब पुअर हैंडराइटिंग। और जब उन्होंने मेरे को उस बच्चे का प्रोफाइल बताया कि कुछ साल उसने डीपीएस में स्टडी की हुई है, और उसके बाद उसने 9 to 12 मेयो कॉलेज अजमेर से स्टडी की हुई है, और उसके बावजूद उसकी ये पोजीशन है। वो एक एसडीएम का बेटा था, अब तो उनकी यहाँ से ट्रांसफर होगी मेरी सिटी से। पर ये प्रॉब्लम देख के मतलब मैं भी शॉक्ड हो गया कि इस हायर लेवल के इस इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से अगर आपकी स्टडी हुई है, तो उसके बाद भी ये पोजीशन है। Yes, sir. Thank you. We actually have one more question हाँ, by वन मोर uh, क्वेश्चन है। जी सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आए हैं by Nageshwara Rigavali, who is asking, graphologists study the handwriting of a person and reviews the behavior of that person, analyzing it in detail. For example, the attitude and hobbies. So please throw some light on this, sir. Graphology के बारे में. ग्राफोलॉजिस्ट मीन मतलब हैंड Yes, sir. जो handwriting analysis करके उनके thoughts and behavior के बारे में we have no. So हैंडराइटिंग मैडम, हमने जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें एक तो कैलीग्राफी के बारे में जैसे मेरे को बताया हुआ है कि उसमें तो एक शेप प्रॉपरली दी जाती है, और जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसमें जो भी बच्चे की हैंडराइटिंग करंट में है, जिस भी तरह से वो शेप्स को लिखता है, अल्फाबेट्स को लिखता है, हम उसको इम्प्रूव करवा देते हैं अपने लाइनिंग के थ्रू।
और उसको इम्प्रूव करवाने के बाद जब वो साफ साफ लिखा होता है, जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा नोटबुक पे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा करेगा। कॉन्फिडेंस अच्छा करेगा तो आपका एटीट्यूड भी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और यस सर, यू आर वेरी राइट ऑन दैट एस्पेक्ट कि जैसे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ये सब ट्रिक्स तो आपने पहले भी हमारे साथ डिस्कस करी, जो हैंडराइटिंग के थ्रू हम काफी इंप्रूव भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसी बात पे वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इवनिंग। Manish Tiwari ji, Mr. Manish Tiwari is asking, handwriting is not just about putting pencil to paper, it is about multitasking because your mind tells you what to write and forms a shape. Your hand moves from left to right, shaping the letters, and your eyes focus on the word and the movement. It is one of the most important fine motor skills that every child needs to develop. As parents, what it is their responsibility to help their kids transform scribbles into fine handwriting? एक्चुअली मैडम, पेरेंट्स को अभी तक तो समस्या कहाँ डेवलप हो रही है इसी चीज का नहीं पता था। तो अब पेरेंट्स जब इस तरह की नोटबुक में ये समस्या देखेगा, ये सॉल्व हो रही है यहाँ, क्योंकि हमने आज तक जिस भी स्कूल्स ने हमारी नोटबुक्स यूज की हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स उन लोगों की बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। और सॉल्व हो जाने के बाद नेचुरली पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए कि उसके बच्चे की हैंडराइटिंग फॉर एवर अच्छी रहे, लेकिन उसको यही नहीं पता कि वो सिंगल लाइन नोटबुक में जब हैंडराइटिंग इंप्रूव करवाने की कोशिश करते हैं, और वो प्रेशर के साथ हम लिखना कहीं सिखाते ही नहीं है। अगर आप कभी पुलिस वालों को देखें ना, जब वो अपना नोट्स तैयार करते हैं किसी केस के बारे में, आप उनको देखें, वो प्लेन पेपर पे करते हैं, कोई लाइनिंग भी नहीं होती उस पर, जो उनके रीडर्स हैं वो, और हमेशा उनकी लाइन स्ट्रेट चाहेंगी। लेकिन जब आप किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में देखेंगे, बोर्ड पे जब टीचर लिखता है, तो शुरू की 2-3 लाइनें तो उसकी स्ट्रेट चलती हैं, फिर वो एक साइड में झुकनी शुरू हो जाती हैं, इंक्लाइंड होनी शुरू हो जाती है लाइंस। तो वो टीचर को भी वैसे ही देखता है, तो उसको वो चीजें की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता लगती, पेरेंट्स को भी और टीचर को भी नहीं लगती, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम ही कभी आज तक महसूस नहीं हुई कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हैंडराइटिंग कहाँ चेंज हो रही है। जब आप मल्टीपल टास्किंग एक छोटे बच्चे से करवाना चाहते हैं, मल्टीपल टास्किंग होगी ना, हैंडराइटिंग का साइज भी छोटा हो गया आपका, और उसको स्पेसिंग भी नहीं है। एक चीज देखिए, आप और हम गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, एक हाईवे ऐसा है या एक रोड ऐसी है जिसपे लाइनिंग नहीं है, 4 लेन या 3 लेन या 2 लेन नहीं बनी हुई। अब जब आप नाइट को उस पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो सामने से जब कोई व्हीकल आता है, तो आप जज नहीं कर पाते कि मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, आप बहुत स्लो होकर साइड में हो जाते हैं। ऐसे ही सामने वाला भी करता है। लेकिन अगर आप एक लेन में चल रहे हैं, लेन में चलने के बाद आपको बड़े अच्छे से क्लियर है कि अगर मैं अपनी लेन में चलूंगा, सामने वाला भी अपनी लेन में चलेगा, चाहे मैं कितनी भी स्पीड से चलूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये आप और हम सभी रोज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वही सेम चीज यहाँ है कि अगर वो बच्चे को हमने जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है कि वो लाइनिंग के अंदर लिखना शुरू करे, 3 4 5 साल वो लिखेगा, स्पीड से भी लिखना शुरू हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम उस पेरेंट्स के लिए आएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नहीं पता थी आज तक। अब हर कंपनी की जो R&D टीम है, आज हम एप्पल 1 से लेकर एप्पल 12 तक पहुंच गए, तो वो क्यों पहुंच गए? कोई ऐसी टीम है एप्पल कंपनी के पास, या इस तरह से हर एक कंपनी के पास, जो ये रेगुलर सोचती है कि व्हाट नेक्स्ट वी कैन गिव। तो वो एक चीज है जो उनको तैयार करती है कि आगे वाले कस्टमर की डिमांड थोड़ी है कि आप मेरे को ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। कस्टमर को तो पता ही नहीं कंपनी क्या देने वाली है। आज भी हम लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसमें सारे फंक्शन क्या क्या है, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा आपको, मेरे को, जो उसके टोटल फंक्शंस को यूज करना जानता हो। एक सिंगल भी नहीं मिलेगा आपको। तो यही प्रॉब्लम करेक्ट सर। पेरेंट्स को भी नहीं पता कि हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जब आप उसको इस तरह से ये समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बारे में हमने शायद कभी सोचा ही नहीं है कि हाँ भाई वहां मार्क्स क्यों करते हैं। ये भी अगर मैंने पहले टीजीटी मैथ्स के तौर पे नहीं पढ़ाया होता, तो शायद मेरे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इसी फील्ड में रहे हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर हुए, तो उनके पास भी जब बोर्ड यूनिवर्सिटी की बोर्ड की आंसर शीट्स आती थी चेक करने के लिए, और मैं देखता था 5 मिनट उनको मुश्किल से मिलते थे कि एक बच्चे की नोटबुक चेक करने के लिए, क्योंकि 6 घंटे स्कूल जाना ही जाना है, एग्जाम्स भी चल रहे होते थे, और वो 500 आंसर शीट्स आती है टीचर के पास चेक करने के लिए, जो कि उसको 20 दिन के अंदर अंदर चेक करके देनी है। तो आप सोचे कितनी एवरेज चाहिए होगी डेली की। और उसका पेपर वर्क, टेबल वर्क भी इतना होता है कि जो उसके मार्क्स हैं वो उसको एक प्रॉपर कॉलम में जाने चाहिए, मिस्टेक्स भी नहीं चाहिए।
तो इतना काम आप, मेरे को नहीं लगता ज्यादातर हम लोगों में से जो नई टीचिंग लाइन में, उनको पता है कि उस टीचर पे उन दिनों में कितना प्रेशर रहता है कि चेकिंग के टाइम पे, और इस वजह से वो प्रेशर में हम सबके लिए काम करना मुश्किल है। आप और हम कितने लोग ऐसे देखते हैं अपनी लाइफ में जो प्रेशर में बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं। और ये चीज अगर आप बच्चे को सिखाएंगे शुरू से प्रेशर के अंदर काम करना, मैं तो मेरे स्कूल में इस तरह से जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसे टास्क रखवाता हूँ कि प्रेशर में काम करना है। ताकि उसको हम, बच्चे उसको इम्प्रूव कर पाए उसमें। मैडम जैसे एकदम से आज आपको मैंने अभी कहा जैसे शुरू इसमें, यू हैव टू टेल मी सम यूजेज ऑफ शूज इन 1 मिनट, और आप लिखो उनको पेपर पे। अब आप सोचो इस तरह से जब आप छोटे बच्चों को करवाएंगे, और ये जो चीजें करवाई जाती हैं ये MBA कॉलेजेस में करवाई जाती हैं, और हम करवा रहे हैं उसको 3rd 4th 5th क्लास में, 6th 7th 8th में। तो यहाँ हम उनको उस तरह से तैयार कर रहे हैं कि आपको माइंड पे प्रेशर के साथ सोचना आए, क्योंकि सोचना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारी लाइफ का। प्रॉब्लम कोई भी हो, आपको लिखना पढ़ना नहीं भी आता तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन सोचना आना जरूरी है। आज आप और मैं अपने चारों तरफ लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन सोचने की कला उनके अंदर बहुत अच्छी है, और हमारे लिए वो बहुत जगह रोल मॉडल हैं। करेक्ट सर। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा हमें उदाहरण दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू बी इंस्पायर्ड बाय दिस, दैट एंड आई थिंक दिस इज अ राइट space to end today's session as well, that sometimes we need to think differently, sometimes we need to do things differently, and then we can understand things ahead, and that is what we as educators and some of us even as students need to be aware of. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us for today's session. इट इज माय प्लेजर। Thank you so much. I think आपकी details हमने already group में post कर दिए हैं. We will write it. I'll read it out for everybody as well. 8379908091. That is different number, madam. That Yes, number sir. is used by my son for the purpose of Let's Write notebooks, and this is All my right. personal number. ओके सर ने आपने अपना नंबर भी ग्रुप में पोस्ट किया. I'll read it out. It's 9414658236. 9414658236. You can connect with Mr. Pankaj Garg and his team on this number. Sir, it has been a pleasure having you here today. हमने आपसे आजकल आज बहुत कुछ नया सीखा एंड समझा. Very very important things as well. बहुत खुशी है कि जैसे तरह से आप DMIT में और मैं कई चीजों पे काम करते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि जब आपको कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं क्लियर हो रहा कि आप क्या करें, तो आप उसको भी ट्राई करके देखें। Thank you so much, sir. I think nayapan and innovation is what you stand for. अलग अलग तरीकों में सही, but definitely I think that is what I see you as from today onwards, and we would love to connect with you again and collaborate with you in future. Thank you, dear participants, for joining us for today's session. But there's a very very small and important announcement. There has been a slight change in tomorrow's schedule. Tomorrow's session will be from 6 o'clock to 7 o'clock in the evening. I'll repeat, tomorrow's session will be from 6 p.m. to 7 p.m. We will keep you updated with all the details as well. So see you tomorrow at 6 o'clock. Thank you, everybody. Have a great evening today. Thank you, madam.